बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज के शो में आप शहजाद अहमद को ग़ालिबन मिस कर रहे होंगे। देयर इज़ अ लिटिल सरप्राइज टू इट बिकॉज़ एक तो वी हैव क्रॉस्ड 100 प्रोग्राम्स विद शहजाद अहमद एंड वी वुड लाइक टू सेलिब्रेट दिस very episode to congratulate Shehzad and the people associated with him. So today's guest is basically Shehzad Ahmad. Welcome, Shehzad. Assalamu alaikum, sir, and thank you very much. Walaikum assalam. Shehzad, this show is dedicated to you primarily. And since we just celebrated Eid ul-Adha, so happy Eid. And उसके अलावा आज हम 103rd शो में भी बैठे हैं. So taking this opportunity, congratulations once again for good 100 days you spent with various senior and people like me who are still learning on this show, and you taught us every bit of this digital communication with the audience. So to start with, I would like to know very briefly, who is Shehzad Ahmad? First of all, thank you very much for giving me the opportunity to have this format of the program. All the credit goes to you for taking this initiative up for yourself. As far as my introduction is concerned, you people know me very well. I've been talking same language, same terminologies for the last 103 days at least. बट मेरी पर्सनल जिंदगी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कभी मौका नहीं मिला आपके साथ डिस्कस करने का. आई बिलोंग टू अ हम्बल फैमिली. आई स्टार्टेड माय चाइल्डहुड विद हम्बल बिगनिंग एंड देन हमारे जो अर्ली एजुकेशन है वो पिंडी की है. रावलपिंडी में मेरी तमाम एजुकेशन है. आई एम गॉर्डोनियन. जो लोग जानते हैं गॉर्डन कॉलेज को, पिंडी को, बहुत पुराना, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस huge and respectable institute. And then Punjab College of Commerce, then Barani University for MBA Marketing. I had been a bright student. All credit goes to my teachers. मैं हमेशा से first grade लेता रहा. 3.96 is my CGPA out of 4 in the university. और फिर education complete करने के बाद going into the employment career for 20 years. And then quitting the job, sales people manager's job in Pakistan, starting my own endeavor with the name of iExpert Training Private Limited company. And the moment I started it, 1 quarter passed and this COVID thing comes in, which made me land into this digital arena. And with this 103rd program, I can safely claim कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि अगर मैं सेफली ये बात करूं so I cannot see anybody else crossing 100 programs in a row with that quality of guests as wisdomful as you are. तो मेरा ख्याल है कि viewers को भी बहुत ज़्यादा appreciate करने की ज़रूरत है कि they bear with me and we all as one family learn many things. Over to you, sir. Thank you, Shehzad. I can safely say as well that you have some of the very loyal viewers who watch your program day after day, month after month, and they have brought us here at the 103rd program. And I can see the comments. Today, before the program, I did some research and I started reading some comments, and there are frequent guests. I'm sure they're not paid, of course, but they are loyal viewers who love you for your style, for your effort, and for your knowledge as well. So coming back to the questions, Shehzad, quarantine, you just touched upon the pandemic, COVID-19, which you just left your job, and within few weeks or months, this thing happened. What are your learnings basically, and how did you cope up, and how did you really work around? You said that on the digital side, you brought this program here instead of going to the boardrooms and conference rooms of the companies. You use this platform, but otherwise, how has been ride? Was it bumpy? I have learned from you people that bumpiness of the road during the journey is mandatory for making you
reach the excellence level. So same happens with this digital arena. For the last 3 or 4 months it was not an easy thing. अब ये देख लीजिए कि बाकी टेक्नोलॉजी ग्लिचेस या बाकी तमाम चीज़ें जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे मुश्किल हो सकती हैं वो एक तरफ, लेकिन इस प्रोग्राम की कंसिस्टेंसी को ही कायम रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. I mean, I belong to a social family. I am father of 4 kids. I have parents. I have all extended family members. तो क्या ही मुश्किल होता होगा, you can well imagine, क्या जहाँ पे लोगों के साथ मिलना मिलाना भी है, बच्चों को भी टाइम देना है. इस वक्त भी मेरी घर के अंदर ईद मिलन पार्टी चल रही है और बहुत ही एक्सटेंडेड लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं. आई एम सिटिंग हियर, you know, this all these things when connected with the bigger purpose make you stand every day, make you come out of the bed every day, make you win the battle over the bed. ये वो तमाम चीज़ें जो कि आप जैसे लोगों ने मुझे सिखाया कि जब बड़ा पर्पस आपका अटैच होता है तो आपको ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो है मुश्किल नहीं नज़र आती. नाउ कमिंग बैक टू द पर्पस, कि कौन सा ऐसा बड़ा पर्पस था जो इसके साथ अटैच था जिसने मुझे कनेक्टेड रखा, वो जब गुफ्तगू आगे चलेगी एंड इफ़ यू अलाउ तो वो भी शेयर करेंगे सर. ठीक है, थैंक यू शहजाद. एक दो और सवाल हैं, चूँकि आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव family in the house and you have Eid Milan going on, so we will shorten this program, and if you agree, because I want you to participate and spend time with your family who have been traveling here all the way to meet you. Your views for our audiences and for our particularly young listeners and viewers. How do you see the hard work versus smart work? इसकी एक एग्जांपल दूंगा सजवानी भैया. You have made me go back 20 years or 25 years back when I was in my BCom age. मैं BCom कर रहा था and बैचलर्स ऑफ कॉमर्स के उन पेपर फाइनल एग्जाम्स के दरमियान हमें ये शौक आ गया कि हमने टॉप करना है कॉलेज के अंदर. And I still remember I went hunting a person who was senior to us, and he was gold medalist at that time. And we got hold of that Faisal Sultan and we asked him कि what were the tricks of the trade. और उसने बहुत सिंपल सी चीज़ बताई मुझे जो कि मुझे अभी भी याद है, और जो ऐसे बच्चे जो आज भी फिजिकल पेपर्स के अंदर जा रहे हैं उनको भी ये टिप फ़ायदा देगी. उसने कहा कि यार आप जब एग्जामिनेशन में जाते हैं 3 घंटे का पेपर होता है, यू टेंड टू स्पेंड अराउंड 10 to 15 minutes for making the borders of the paper. आप दोनों तरफ स्केल से लाइनें लगाते हैं और पूरे पेपर्स के ऊपर वो एक खूबसूरती क्रिएट करने के लिए बॉर्डर बनाते हैं. इट टेक्स योर 10 to 15 minutes. तो स्मार्ट वर्क ये है कि आप पूरे के पूरे पेपर्स की वो कॉपी दें और उस कॉपी को आप इस तरह से एक साइड से फोल्ड करें और ये बॉर्डर बन गया, और इसी तरह से आप दूसरी साइड से आप फोल्ड करते हैं और आप उसको जब अनफोल्ड करेंगे तो ये आपका बॉर्डर बन गया. तो यू सी आपको ये बॉर्डर नजर आ रहा है. तो दिस वाज अ स्मॉल ट्रिक, लेकिन ये ऐसी ट्रिक थी सजवानी भाई के इट मेड मी लर्न द आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क अगेंस्ट हार्ड वर्क. आपको पता है कि मैंने बीकॉम के जितने पेपर दिए हैं, मैं जो इंक यूज करता था वो ब्लैक इंक थी राइटिंग के लिए और ग्रीन इंक थी हेडलाइंस के लिए. और मैं जब पेपर अटेम्प्ट करता था सर, तो मैं एक्चुअल पेपर से पहले एक डमी मॉक पेपर पूरा अटेम्प्ट करता था, 3 घंटे में लिखता था अकेले बैठ के, और अगले दिन मैं जाके टीचर्स को चेक करवाता था कि अगर ये बोर्ड का पेपर हो और आपको ये चेक करना पड़े तो इसमें कितने मार्क्स आएंगे. एंड टू योर सरप्राइज उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके 65 आएंगे, 60 आएंगे, 70 आएंगे, और ये मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं. एंड वुड यू बिलीव कि जब मैं फाइनल पेपर दे के आता था तो उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैं अपनी मार्किंग खुद करता था. एंड व्हेन द फाइनल एग्जाम शीट पेपर्स वर कंडक्टेड और मेरा फाइनल जो मार्कशीट आई और जो मैंने खुद से अपनी मार्किंग की थी, देयर वाज नॉट अ डिफरेंस ऑफ मार्जिन, फ्रैक्शनल ±2% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था. And I still remember local newspapers shared my success story in Punjab College of Commerce, and I stood first in the college, and that was unbelievable victory at that time, जिसने मुझे ये बताया कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के दरमियान देयर इज डेलिकेट डिफरेंस. और सजवानी भाई ये वो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपने भी प्रैक्टिस की हैं, आपने भी देखी हैं, एंड इट ऑलवेज पे यू ऑफ.
ट्रू। शहजाद, पैशन क्या होता है आपके नजदीक? आज बड़े 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 इम्तिहान ले रहे हैं आप। अच्छा, वी गो बिफोर वी गो इनटू द पैशन थिंग, मैं यहाँ पे ऑडियंस का एक चीज अपनी तरफ से आपके हवाले से भी बताना चाहूंगा, एंड दैट इज टू माय नॉलेज एंड माय रिकॉर्ड, इफ इट इज दैट मच नॉट ओल्ड एंड इट इज अपडेटेड, we have almost done 10 programs with you, starting from 29th of April so far till today. लास्ट प्रोग्राम शायद इसके रिकॉर्ड के अंदर शामिल नहीं है। और इन 10 प्रोग्राम्स का अगर मैं वॉच टाइम या रिकॉर्ड टाइम निकालना चाहूँ तो सजवानी भाई ने मेरे साथ इस वक्त तक 469 मिनट्स का विजडम शेयर किया है, और आपने मेरे साथ 335 सेकंड्स का विजडम शेयर किया है। और अगर मैं इसको मिनट्स और सेकंड्स को कन्वर्ट करना चाहूँ घंटों में, तो यू हैव गिवन अस द विजडम ऑफ कॉन्टिन्यूस 8 hours to the viewers all around the world, not only in Pakistan. जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि हमारे जो ऑडियंस है वो लिमिटेड होने के बावजूद उनकी स्टिकीनेस यहाँ पे मौजूद है, तो आई कैन क्लेम कि आपने 8 मतवातर घंटे का विजडम हमारे उन लोगों के साथ शेयर किया जो कॉन्टिन्यूसली आपको 29 अप्रैल से लेके आज 5 अगस्त तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ही एप्रिसिएशन हो बिफोर वी गो इनटू द फर्दर डिस्कशन सर। No, thank you. Thanks. I think this is the mutual respect and mutual understanding that we have, and we enjoy that and we celebrate that. आज आप celebration की बात कर रहे हैं social media पे, so this is also to be celebrated, that it is both ways. I mean, you respect me, I respect you, you value me, I value you, and this goes for all your speakers and your guests who have been on to this program. और पहला प्रोग्राम मैंने आपका जब देखा था, जब आप असद मजीद के साथ आए थे, और मैंने कहा आई नो दिस पर्सन, एंड द नेक्स्ट डे असद मजीद कॉल्ड मी सेइंग दैट डू यू नो शहजाद, राइट? आई सेड आई नो बोथ ऑफ यू, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, एंड आई कॉन्टेक्टेड यू दैट लेट्स जॉइन हैंड्स इफ आई कैन डू समथिंग फॉर यू, एंड उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एंड दैट हैज बीन अ गुड लर्निंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज दैट कीप्स मी ऑन माई टोज एज वेल, कि हम जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। और वजिया की तरफ से कोई सवाल आया है? आई कैन सी हर नेम। जी, वजिया आपकी स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, और वो कह रही हैं कि देयर आर मेनी अदर वेज ऑफ स्मार्ट वर्क टू व्हाइल गिविंग एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम्स में कामयाबी हासिल करने के लिए और भी बड़े शॉर्टकट्स हैं। तो यस वजिया, इसमें बूटी भी है। जी हाँ, वो बूटी भी है। जहाँ तक सजवानी भाई पैशन का ताल्लुक है, पैशन की डेफिनेशन देने के बजाय अगर एक एग्जांपल ही शेयर कर ली जाए तो मेरे ख्याल के इट विल वर्थ शेयरिंग, एंड if the people around us know the importance of any employer who is rated as number 1 employer in the industry or in overall Pakistan's business arena, and a person who is working finely and just like anything as a sales manager there, and one fine morning he says that I have to quit and I have to go for my passion and go for the thing which I love to do. I think that there will not be any bigger example than this, कि जहाँ पर मैं 20 साल की एम्प्लॉयमेंट कैरियर के बाद लोगों के मना करने के बावजूद उसे छोड़ता हूँ, और अपना एक मिनिमल सा होमवर्क करने के बाद एक ऐसा सेटअप चलाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे मुझे काम करते हुए थकावट महसूस नहीं होती। तो दैट इज आई थिंक द इनिशियल लिटमस टेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल, कि आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर आप को टाइम के ख़त्म होने का एहसास ही ना हो। ज़बरदस्त। और ये एक अच्छी चीज़ है कि क्या ही अगर आपका कारोबार या आपका पेशा वही हो जो आपका पैशन है, तो उसमें डेफिनेटली एक तो बरकत होती है और प्लस आप खुशी महसूस करते हैं। बिकॉज हम जो मंडे ब्लूज और ऑफिस में इस तरह की बात करते थे कि लोगों को बहुत बुखार आता है, और अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी अगेन इट्स मंडे, या ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा बैक टू वर्क, तो पीपल फील नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। हालांकि अगर जो आपका काम है वो अगर आपको खुशी देता है तो इससे बढ़कर कोई और चीज नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने सवालात रोकता हूँ। नहीं, मैं आप तो सवालात रोक रहे हैं, एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट माय चाइल्डहुड। अभी मैं एक एडवर्सिटी का जिक्र नहीं किया जो कि मैं अक्सर प्रोग्राम्स में करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि व्यूवर्स के लिए बड़ा वो एक मोटिवेशन होती है। बट बिफोर दैट
I would like to ask you about your childhood, your initial education, your family, ऐसी चीजें जो आप बताना चाहें हमारे viewers को, जो कि हम normally आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं, तो you go ahead with that. Yeah, in fact, I am from Gwadar originally, Gwadar, Balochistan. Early education के बाद we moved to Karachi for my higher schooling because I'm the only child of I was the only child of my parents. Both passed away a few years back. अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे. लेकिन मेरी वालदा जो है वो मेरे साथ कराची आई and we started living together in a one-bedroom apartment. And from there, my father stayed back in Gwadar. He worked because he had his business over there. और उसके बाद जो है वो कॉलेज एजुकेशन मैंने कराची से कंप्लीट की and then I moved abroad for my higher studies, my post graduation. After coming back, I started working in telecom in Pakistan, which is the Instaphone. Which was first two companies. उस जमाने में पाकटेल होता था और इंस्टाफोन होता था. पाकटेल जो है वो 91 में आया था या 90 में आया था और ये जो है वो 92 के गालिबन बहुत शुरू में आया था पाकिस्तान में. दैट वाज अ रियल ब्लू चिप कंपनी और जिसको हम कहें कि टेलेनोर या जैज जो है वो क्या ब्लू चिप होगी. उस जमाने में एवरी टॉप नॉच मैनेजमेंट person used to be from US or Luxembourg. So we had a good time. But उस ज़माने में जो है वो we had a problem in Pakistan because of the law and order situation. The government of the then government, which was of People's Party, they decided to shut down cell phone services in Karachi. So we were left with no choice to move either to Lahore or Islamabad because services were on there. So we had to move those who wanted to retain their jobs. और फिर चल सो चल तब हम सबसे इस्लामाबाद के होकर रह गए. And in various cell phone companies, I worked in starting with Instaphone, then Jazz, which was Mobilink, then Telenor, and in the for a short while, I worked for hospitality industry as well, which is Marriott and Pearl Continental's head office and Serena Hotels company, which was, I mean, a short experience, but that's how I started. And I'm happily married with 3 daughters and one daughter, she's mashallah married, and I am Nana now as well. I have a young grandson, and my 2 daughters are here. One is working as head of business recruitment at a Google-based company here in Pakistan, and my third daughter is doing her medicine. She will inshallah qualify next year, and she will become full doctor. So that's the short family we have, and that's the little short story about myself and my family. अच्छा, आपने एक मरतबा हमें बताया सलवानी साहब के एक प्रोग्राम में आपने जिक्र किया कि इन योर इनिशियल प्रोग्राम्स विद मी कि जो नए एंट्रेंट्स हैं इनटू दिस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थिंग एंड कोचिंग एंड मेंटोरिंग, they should focus on reading habit, and you then told us about the importance of physical books versus online digital e-books. How do you see that, and how much important is this book reading for the new entrants? Because आज हर चीज़ अवेलेबल. मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो कहते हैं कि हमने यूट्यूब के या व्हाट्सएप ऐप के ऊपर जो है ना वीडियो लिंक्स देख लिए थे, वीडियो के ऊपर एक टॉक देख ली थी, टेड टॉक देख ली थी, जिससे हम समझते हैं कि हमने वो विजडम हासिल कर लिया. तो व्हाट इज बैड इन डूइंग दैट? Nothing is bad as far as its knowledge, and I mean when in good days when we used to travel frequently, or even on international flight, I used to see people carrying digital book readers, and they used to read throughout. But पता नहीं मेरी जनरेशन के लोग शायद इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि जी यू हैव टू हैव अ फिजिकल बुक जिसकी एक तो अपनी महक है, एक खुशबू है. वो गुलजार साहब की भी
एक नज़्म है बड़ी खूबसूरत सी। मुझे असल में बहुत सारे अशार याद नहीं रहते, बट किताबों के बारे में उनकी बहुत अच्छी खूबसूरत नज़्म है या गज़ल है, उसको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, मिल जाएगी। अगेन इंटरनेट पे मिल जाएगी बआसानी, शायद किसी किताब में ढूंढनी पड़े। लेकिन किताबों का मैंने देखा है कि अभी भी बहुत सारे गोरे जब आपको एयरपोर्ट्स पे नज़र आते हैं या फ्लाइट्स पे नज़र आते हैं, they always carry book in their backpacks, physical books, not that digital book, but चूंकि वो एक मेरा ख्याल है बचपन से ये जो यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में ये हैबिट है कि जी आप बच्चों ने किताबें पढ़नी है। तो वो शौक जो है वो, और हमारे यहाँ भी देखा है मैंने कि हमारे मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग बहुत भारी भारी, मैं इवन हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को कुछ को जानता हूँ कि जो बड़े मतलब खासतौर पर हमारे सेनेट के जो एक्स चेयरमैन थे रजा रब्बानी साहब, आई नेवर सॉ हिम विदाउट बुक इन द प्लेन। और वो कोई सियासी बुक भी हो सकती है या कोई मैनेजमेंट की या लीडरशिप की बुक। आई मीन इत्तेफाक हुआ है उनके साथ बैठने का, एंड आई कुड सी दैट, आई मीन दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, जिनको हम शायद बहुत अच्छा नहीं समझते, बट उनमें से भी काफ़ी ऐसे अच्छे लोग हैं कि जिनको पढ़ने की आदत है। और ऑफ कोर्स ये बजाय इसके कि हम जो है वो हर बार जो है वो बेल मार के जो है वो एयर होस्टेस को बुलाएं और चाय और पानी मांगे, तो आई थिंक दिस इज अ गुड हैबिट दैट बंदा खुद भी सुकून से रहे और पढ़े सुकून से, और दैट इज द बेटर टाइम कि या तो आप सोएं या फिर किताब पढ़ें। तो आई पर्सनली फील कि दैट फिजिकल बुक हैज नॉट लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंट, बट आवर यंगर जनरेशन या आइंदा आने वाली जनरेशन जो हैं वो इसको कैसे लेती हैं। चूँकि बुक शॉप्स, मुझे एक बड़ा अजीब तजुर्बा हुआ था इन कराची। सदर ज़ैबुनिसा स्ट्रीट पे एक बड़ी खूबसूरत बुक शॉप हुआ करती थी, उसका नाम था लंदन बुक शॉप। और आप यकीन करें कि इस्लामाबाद से जब मैं ट्रैवल करता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू गो टू दैट बुक शॉप। और एक मरतबा आई यूज्ड टू स्टे इन वन ऑफ द होटल्स नियर बाय। तो शाम को मैंने ड्राइवर से कहा कि मैंने कहा आई हैव टू गो टू ज़ैबुनिसा स्ट्रीट। तो उसको पता था मैंने ज़ैबुनिसा स्ट्रीट में कहाँ जाना है, तो he took me, and to my surprise that shop got converted into KFC, and I was so shocked that पाकिस्तान में जो है वो ये हो सकता है कि मैं शायद काफी महीनों बाद आया हूँ कराची, and I did not enter into that, though I was hungry, but I was really very upset कि हमारे मुल्क में ये हो सकता है। बाहर आप जाएं या इवन कराची में जो लिबर्टी बुक शॉप्स हैं वो अभी तक बुक शॉप्स हैं। सेम गोज फॉर लाहौर, सेम गोज फॉर इस्लामाबाद, सही बुक बैंक, बट दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। बाहर भी मुल्कों में आप जाएं तो जो पर्टिकुलर स्पॉट्स आइडेंटिफाइड होते हैं कि यहाँ पे बुक शॉप होगी तो वहाँ बुक शॉप होती है। दैट डजंट गेट कन्वर्टेड इनटू अ रेस्टोरेंट और समथिंग, सम ईटरी पर्पस के लिए जगह। लेकिन लेट्स होप एंड प्रे। जी जी। What about your family? आपके जो बच्चे हैं, are they also gelled with the physical books, or they prefer online or digital book reading, और क्या वो बुक रीडिंग करते भी हैं या नहीं? फॉर द फर्स्ट बुक रीडिंग करते हैं, और बुक मेरी बेगम भी इत्तेफाक से शी ऑल्सो रीड्स अ लॉट, और ख़ास तौर पर अशफाक साहब की कुदरतुल्लाह शाहब, और वो एक एक्सप्रेस पे जावेद चौधरी, इनकी चंद किताबें हमारे घर में जो है उनका अलग बुक शेल्फ है घर के अंदर। और मेरी बेटियां भी इस क्वारंटाइन में दे ऑर्डर्ड ऑनलाइन बुक्स सो मेनी कि अब उनकी अपनी अपनी छोटी छोटी जो है वो कॉर्नर लाइब्रेरी कॉर्नर्स जो है वो उनके कमरों में बने हुए हैं। एंड दे आई थिंक दिस आई पर्सनली inherited this from my father, because he was and I still inherited 30 to 40% of my personal library from my father. So जिसमें जो है वो कुरानी नुस्खे और मजहबी किताबें, अल्लामा इकबाल का जो है वो कुलियात हो गया, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का कलाम हो गया, तो चंद किताबें जो है वो उनसे मुझे तोहफतन मिली हैं जो अब मेरी लाइब्रेरी का हिस्सा है। तो दैट्स हाउ आई थिंक दिस पेनिट्रेट्स इन द फैमिली एज वेल।
Okay, probably the second last question for today's session is आपने जब book reading की इतनी बात कर ली है तो books give you the knowledge and wisdom. How do you see knowledge versus information? Because information is आप एक प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे हमारे साथ अब्दुल जवाद खटक साहब भी थे तो एक डिस्कशन चली थी, I still remember, and you beautifully quoted the difference between knowledge and information. You throw some light on that concept, sir. Knowledge, to me, knowledge is pure and knowledge is positive. Information could be positive and information could be negative. हर मेरी जहन के हिसाब से हर इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज नहीं होती. तो ये बहुत ज़रूरी फ़र्क हमें कायम रखना है कि कोई भी खबर जो है या कोई इत्तला है, इंफॉर्मेशन की उर्दू में हम इत्तला बोलेंगे मेरा ख्याल है उसको, या मालूमात बोलेंगे. तो और नॉलेज जो है वो इल्म है, और इल्म क्योंकि उसका ताल्लुक बेसिकली अल्लाह से है जो जिनसे हमें मिला है, तो उसको जो है वो जिसको हम इल्म लुदनी कहते हैं, और बाकी भी उसकी किस्में हो सकती हैं जिसको हम किसी और वक्त डिस्कस करेंगे. लेकिन मेरे नज़दीक हमें ये बात समझना चाहिए कि इंटरनेट पे नॉलेज भी है और इंफॉर्मेशन भी है. तो लेट्स नॉट मिक्स अप. जो चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं वो हम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं और बहुत सारी फजूल चीज़ें भी होती हैं उसमें, तो दैट वी कैन नॉट कॉल नॉलेज. तो दैट इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दील होती है. लेकिन इल्म जो है वो बरकरार रहता है और वो हमें फ़ायदा पहुंचाता है बेसिकली. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. Shadwani sir, it always feels good while talking to you. It was when we're talking about wisdom and all that professional discussion and content. But today, even it is feeling better on my end because हम बहुत candidly चीज़ों को discuss कर रहे हैं और हम information ऐसी share कर रहे हैं कि which will benefit all the viewers. मुझे ये बताइए कि the new people into this industry who have started their career as coach or the corporate trainer, once I remember that you had shared the difference between कोच एंड द मेंटोर, और आपने बहुत खूबसूरती से बताया था कि आज जो आपका बिजनेस कोच है वो आप अगर उसको यू कैन नॉट आई ऑन इट, तो फिर आप एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि जो आज आपके कलीग्स हैं, आज से 8 साल बाद 10 साल बाद जब वो किसी अच्छी डेजिग्नेशन पे होंगे तो यू कैन गो एंड स्ट्राइव फॉर द टॉप लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू कोच देम. But today you can start from the lower level. You share that thought once again for the viewers, sir. I will have to think what I exactly said, but coaching, I think मेरे नज़दीक अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में, because I missed out that question जो हमारी ऑफलाइन डिस्कशन हुई थी इसके बारे में. कोचिंग अगर हम जूनियर लेवल से बात करें तो मेरा ख्याल है कि आज के ज़माने में जितनी भी कंपनीज हैं दे प्रेफर टू कोच देयर टॉप लीडरशिप. कुछ कंपनीज जो हैं बाहर के मुल्कों में जहाँ हम बात करते हैं, लाइक वजीहा जो हमारी कॉलीग है वो भी और आप भी हैं इस फील्ड में, तो जहाँ तक ताल्लुक है यंग कोचेज़ का कि उनके कोचेज़ जो है वो कौन होंगे, तो मेरा ख्याल है कि अगर कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं इस फील्ड में और इस तरह से कर रही हैं कि जहाँ पर आप यंगर जनरेशन को भी कोच कर सकें और उनको ट्रेन कर सकें कि वो आगे आएँ. मेंटोरिंग इज मेनली द हैंड होल्डिंग पार्ट मेरे नज़दीक, कि जिसमें आप हाथ पकड़ के उनको बता सकते हैं कि जी दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, एंड दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑफ यू कि जी इन चीज़ों को आप तर्क कर दें. लेकिन किसी और वक्त मेरा ख्याल है इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा तफसील से अगर हम टेकअप करें ताकि इनका फ़र्क जो है, और मे बी another speaker who can join us and we can talk about it. With this, thank you very much for all the wisdom sharing and for all the personal details you have shared with us today. Over to you, sir. आप बताइए अब how to proceed further. Is that all, or we have some agenda left? Do we have any questions? Not yet. Sir, अभी तक तो कोई नहीं है ऐसा. ठीक है, I think we can wind up and you can go back to your family. And thank you very much for having this and allowing me to host the show for a few minutes. And that is something which is very important. And it was a really pleasure knowing more about you, because जो आप सारों से जो है वो इतने सारे questions करते हैं, तो आज हमने सोचा कि आपसे भी कुछ पूछा जाए आप ही के अपने चैनल पे कि क्या exactly who is Shahzad Ahmed and
दो आई डिडंट नो मच अबाउट योर पर्सनल लाइफ, बट आज आपने हम मुझ समेत सारे नाजरीन को जो है वो बताया. तो थैंक यू वेरी मच. Thanks a lot once again. Thank you very much for your time. Inshallah, we are going to see you next Wednesday with Sajwani Saab. Take care. Inshallah, फिर मुलाकात होगी. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much.